لاڑکانہ سکھر نواب شاہ سمیت سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے۔ انتخابی سامان کی ترسیل لاڑکانہ، بے نظیر آباد، سکھر اور میرپور خاص ڈویژن میں میدان سجے گا۔ ضلع کونسل کی 794 نشستوں پر امیدوار مد مقابل 1,18,00,000 سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت پر حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کرنے کا الزام۔ بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا سندھ حکومت نے جہاں چاہا سیاسی بنیادوں پر حلقہ بندیاں کی۔ وسیم اختر بولے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، سیاسی جماعت ہیں، کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان۔ عمران خان نے کہا سندھ میں پیپلز پارٹی ہمارے امیدواروں کو ہراساں کر رہی ہے۔ عمران خان کا الزام، عمران خان آج لاہور بھی جائیں گے، ضمنی انتخابات والے 4 حلقوں میں مہم چلائیں گے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے عمران خان کے لیے سیکیورٹی مانگ لی۔ بلاول بھٹو کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے پارٹی امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا ہمارے مخالفین مسلسل شکست سے دوچار ہو کر مایوس ہو گئے ہیں۔ مخالفین معاملات کو کشیدگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کارکن پرامن رہیں، جمہوریت ہی ہمارا بدلہ ہے۔ حکومت کا بجٹ کے بعد بڑا جھٹکا، عوام چکرا گئے۔ 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ پر ٹیکس لگے گا۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے کمانے والے پر 1,250 روپے تک ٹیکس لگے گا۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ پر 13,750 روپے ٹیکس عائد۔ 3 لاکھ کمانے والے کو 33,750 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ 4 لاکھ پر 58,750 اور 5 لاکھ پر 83,750 روپے ماہانہ ٹیکس لگے گا۔ 50,000 روپے کمانے والے ٹیکس سے مستثنی قرار۔ زیادہ تنخواہ پر ٹیکس بھی زیادہ دینا ہوگا۔ ماہانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ پر 1,16,250 روپے ٹیکس عائد۔ 7 لاکھ پر 1,48,750 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ 8 لاکھ تنخواہ والوں کو 1,81,250 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ 9 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 2,13,750 روپے ٹیکس عائد۔ 10 لاکھ اور زائد تنخواہ پر ماہانہ کم از کم 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگے گا۔ پراپرٹی ڈیلرز، بلڈرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیولپرز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ کار ڈیلرز، ریسٹورنٹ، سیلونز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اعلان کر دیا، کہا ڈاکٹرز، وکلاء، ڈیزائنر سمیت تمام پروفیشنلز کو چند ماہ میں ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ زبردستی کچھ نہیں ہوگا، مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ عمران خان کا حکومت کی تنخواہوں پر ٹیکس اور بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس کے بعد میدان لگانے کا اعلان۔ 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔ کہا مہنگائی کا شور مچانے والوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، یہ صرف اپنے آپ کو NRO2 دینے کا سوچ کر آئے تھے۔ بجٹ کے بعد ایک اور بجٹ آیا، تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ سپر ٹیکس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، بے روزگاری بڑھے گی، پیٹرول پر 50 روپے لیوی سے عوام کا معاشی قتل ہوگا۔ عمران خان کی کراچی، لاہور، ملتان، پشاور سمیت بڑے شہروں میں احتجاج کی بھی کال۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عمران حکومت مزید رہتی تو ملک تباہ ہو جاتا۔ ہم نے ملک کی بقا کی جنگ لڑی، مہنگائی اور مشکلات کے دلدل سے ہمیں نکلنا ہے۔ آئین ابھی بھی ہدف پر ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کو دباؤ کے تحت لمبا کیا جا رہا ہے۔ ملک کے ادارے حکومت کی پشت پر کھڑے ہوں۔ IMF اور فیٹف کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملک کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان و فواد چودھری نے PTV کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ مریم اورنگزیب کا دعویٰ۔ اے اسپورٹس سے کرکٹ رائٹس واپس لینے کا اعلان۔ کہا کرکٹ رائٹس کے نام پر من پسند کمپنی کو نوازا گیا۔ ایک PSL ایونٹ میں 52 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ٹیکسوں کا پیسہ ARY کی جیب میں گیا۔ FIA نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی، کسی سے رعایت نہیں ہوگی، سب کو سزا ہوگی۔ فواد چودھری کا مریم اورنگزیب کے الزامات پر جواب۔ کہا ہمارے دور میں PTV 4 ارب روپے منافع میں تھا، یہ لوگ اپنے اقدامات سے PTV کو نقصان میں لے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب کو کینڈی کرش کھیلنی آتی ہے، وہی کھیلیں۔ کینڈی کرش چیمپئن کی پوری ٹیم ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में इत्तेहादियों के शिकवे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फंड्स के इजरा में ताख़ीर का शिकवा। कहा ग्रीन लाइन और नालों की तामीर सुस्त रवी का शिकार है। MKM वफ़द ने कहा पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर कई उमूर हल तलब है। वज़ीर आज़म की मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। कहा सिंध की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी और MKM का साथ चलना जरूरी है। फवाद चौधरी ने कहा आवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। गैलप सर्वे में 76% अफराद ने इंतखाबात को वाहिद रास्ता करार दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत जल्द अगली कॉल देंगे। पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। हुकूमत को इंतखाबात के लिए मजबूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली के 19 सरकार ने झूठ और फरेब छोड़कर अलहदा ग्रुप बनाया। 3 माह गुजर चुके लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम किसी को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, मगर करप्शन करने वाले जरूर कानून की गिरफ्त में आएंगे। अयाज सादिक एक बार फिर नवाज शरीफ के जल्द वतन वापस आने का भी यकीन दिलाया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के मजबूत सियासी खानदान में दरार। चौधरी शुजात छोटे भाई चौधरी वजाहत के इल्जामात पर फट पड़े। कहा आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने की बातें बिल्कुल गलत हैं। सालिक हुसैन ने मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट दिया। तारिक बशीर चीमा पर हमारे खानदान को तकसीम करने का इल्जाम झूठ है। परवेज इलाही को कल कहा है कि सबको मामलात पर गुफ्तगू से मना करे। वजाहत हुसैन इल्जामात पर 30 जून तक माजरत कर लें। माजरत ना की तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा चौधरी शुजात बड़े भाई हैं, इनकी किसी बात पर तबसरा नहीं करूंगा। डॉलर्स मांगे गए, किसी को सबूत चाहिए तो दूंगा। नून लीग के साथ चलते तो हम अकेले रह जाते। 10 जमातों का इत्तेहाद जल्द तितर बितर होने वाला है। मुल्की मसाइल का वाहिद और फौरी हल इलेक्शन है। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में भी मुबैना चपरासी की एंट्री। FIA की तहकीकात में चपरासी नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ। मोनस इलाही ने जमा कराए जवाब में कहा नवाज भट्टी को नहीं जानता। FBR में सब कुछ डिक्लेयर है। इमरान खान नैब कानून में तरामीम पर हुकूमत पर बरस पड़े। नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा हुकूमत ने बड़े डाकुओं को खुली छूट दे दी। अब छोटे चोर पकड़े जाएंगे। ताकतवर अफराद को कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हुकूमत ने इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोद दी। 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कर दिए गए। नैब कानून लागू रहा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिकन बन जाएगा। अदलिया से उम्मीद है कि वो इस जुल्म को नहीं होने देंगे। हुकूमत ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तरमीम का अदालत में भरपूर दिफा करने का ऐलान। कहा तमाम तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। 80% तरमीम वही हैं जो इमरान खान ने अपने दौरे इख्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। इमरान खान सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। पिशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। छांगा मांगा में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने 15 जुलाई के बाद तवानाई का बहरान कम होने का इशारा दे दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा मानसून की वजह से पानी आएगा। फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही तवानाई का बहरान खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले सस्ती LNG के लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए गए। अब $40 की भी LNG नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान जनवरी 2023 में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवांडा में जारी इजलास से खिताब। कहा
नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपए भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। जुलाई का महीना अहम है। कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि IMF के साथ डील आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है जल्द तय पा जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि IMF के पास जाएं या ना जाएं। बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए निस्बतन कम बुरा फैसला किया। कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान को पार्लियामेंट में आकर कानून साजी और आगे बढ़ने के मुशावरती अमल का हिस्सा बनने की दावत भी दी। नवाब शाह में बांधी के करीब ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। पेशावर में नहर में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक, बच्ची नहर में गिरी। बचाने के लिए लड़के ने छलांग लगा दी, डूबने से दोनों दम घुट गए। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने मंसूबा बनाकर ARY को खरीदा। बोली में ज्यादा नंबर लगने वाले इदारे को छोड़कर ARY से मुआहिदा किया गया। वो स्क्रीन रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान ARY को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी होता तो इसे ना छोड़ती। शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के इल्जामात को मजाक करार दे दिया। कहा, इल्जाम लगाने वालों के चपड़ासियों के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। हुकूमत ने नैब कानून बदलकर अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी छुपाई। पहले ये देखें, क्या आपकी हैसियत है इल्जाम लगाने की? हुकूमत का नया तोशाखाना पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसी बनाने के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी कमेटी में शामिल। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, करप्ट माफिया ने खुद को NRO2 दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म होंगे। नैब कानून में तरमीम से एहतिसाब का अमल मुतासिर होगा। आदम एतमाद से पहले मुल्क तरक्की कर रहा था। शहबाज शरीफ की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ लॉलीपॉप अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। सईद गनी ने नैब कवानीन में तरमीम पर PTI के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मुतनाज़ कानून साजी की। किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। माजी में नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। नैब कवानीन में तरमीम का मकसद नैब को सियासी असर और रसूख से आज़ाद कराना है। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में उठाए गए नुकात में तरमीम की इस्तदाद। कहा, फैसले में उठाए गए नुकात की हद तक तरमीम की जाए। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च शुरका आज मुल्तान से लाहौर पहुंचेंगे। सिराजुल हक का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। आवाम का जीना मुहाल हो गया। हुक्मरानों के गिरबानों में हाथ डालने का वक्त आ गया। महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए। लाहौर में दिल और दिमाग के अमराज की कई अद्वियात की किल्लत। खून पतला करने वाली दवा मार्केट से गायब। पैनाडोल, एपीवाल मिलना भी मुश्किल हो गया। फार्मेसी मालकान ने कहा, कंपनी से महदूद तादाद से सप्लाई मिल रही है। जैकब आबाद में मौलादाद रेलवे ट्रैक के करीब धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। हुक्काम के धमाके की तहकीकात। आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। हुकूमत का पेंशन भी 15% बढ़ाने का ऐलान। रियासत का 1 खरब 63 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए से जायद तजवीज़। आज़ाद कश्मीर असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया। कहा, हुकूमत वज़रा को नवाजने में लगी है। बजट में अवामी मफाद को नजरअंदाज किया गया। PP 97 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक PTI उम्मीदवार अली अफजल शाही गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गोलियां लगने से ड्राइवर दम तोड़ गया।
PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, नून लीग ने हर हलके में 20,000 बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला धांधली के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। धांधली के लिए तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज इलाही ने PTI में वापसी के लिए 10 करोड़ रुपए की ऑफर की। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार नुमान लंगड़ियाल का इल्जाम। कहा, ऑफर के बावजूद जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। तहरीक इंसाफ गलत कहती है कि हम जमीन फरोश हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें अभी से आसमान से बातें कर रही हैं। कराची में एक जानवर की 1 करोड़ रुपए कीमत भी मांगी जा रही है। टीके लगाकर जानवरों को मोटा ताज़ा दिखाया जा रहा है। शायद रॉबिन हुड वज़ीर खजाना का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना मिलेगा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी इजरा। इस्लामाबाद में फूड डिलीवरी, टेक अवे और ऑनलाइन फूड के कारोबार पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशिया की लोडिंग और इन लोडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वेयर हाउसेस भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार।